Well, dear students, in this lecture, we will be discussing the generating function for the Bessel function Jnx, which is e to the power x by 2 t minus 1 by t. This function is known as the generating function. And in this topic, we will be showing that e to the power x by 2 t into 1 minus t will be equal to summation n runs from minus infinity to infinity t to the power n Jnx. Now here the question arises why this function is known as the generating function for Jnx. Definitely if you look towards the word generating function, generating means we generate something. So ये जो हमारे पास function है, this function e to the power x by 2 t minus 1 by 2, this is a type of function which will generate the Bessel function of different orders. Just like it will generate the j1x, j2x, j0x. Now how it can generate that thing? We will first see that. In the left hand side, we are having e to the power e to the power x by 2 t minus 1 by t. Means if you find out the expansion of this quantity, the expansion is equal to the summation जो आपने अभी देखा. So उस summation को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. I can write down that summation into this form. Uh, t to the power minus t to the power minus 2 j minus 2x plus t to the power minus 1 j1x plus t to the power 0 j naught x plus t to the power 1 j1x plus similarly t to the power 2 j2x plus dash dash dash. It can go up to infinity and it starts from the minus infinity. In other words, if you want to see any quotient a j, I can write down j k x, where k you can have k belongs to integers. K is an integer. If you want to find out any jkx, we can find out just like if we take the value of k to be 1, that will be j1x. So what is j1x? It's simply the quotient of t raised to power 1. So what I will do, on the left hand side, I will have this expansion function. I will expand it. I will see what is the quotient of t in the left hand side. Since we are having equality, this is an identity. In case of identity, right hand side is sort of polynomial and corresponding terms will be equal. So if you find out the coefficient of t raised power 1, that is j1x, and if we find out the left hand side, if we find out the coefficient of t1x, those two will be equal. So in other words, I will be able to find out j1x. Similarly, if I want to find out j2x, what I will do, I will see the coefficient of t square on the left hand side. That coefficient of t square will be equal to j2x. Similarly, if I want to find out j minus 1x, what I will do, minus 1x, let's say minus 1, j of minus 1x, what is this is the quotient of t raised power minus 1. T raised power minus 1, I mean to say 1 by t. So this is the coefficient of 1 by t. So in the left hand side, I will see in the expansion, I will see what is the coefficient of 1 by t. So that coefficient will be equal to j minus 1x. So I am able to find out j minus 1x. Sometimes if somebody will say I want to find out j minus 50x, what I will do, on the right hand side, I will see the coefficient of t raised power minus 50, j minus 50x. So this is the coefficient of j minus 50x is the coefficient of t raised power minus 50. T raised power minus 50. It means 1 by t raised power 50. So on the left hand side, I will see what is the coefficient of 1 by t raised power 50. So that coefficient will be equal to the minus 50. So j minus 50 x. So यहाँ पर we see that we can find out any this Bessel function of any order j and x. हम किसी भी ऑर्डर का बेसल फंक्शन यहाँ पर ढूंढ सकते हैं for different values of n. Because we have to simply find out accordingly we have to find out the coefficient of t on the left hand side. That is why this function is known as generating function, as it generates a Bessel function of every order. जिस किसी भी ऑर्डर का आपको बेसल फंक्शन चाहिए, ये उस ऑर्डर का बेसल फंक्शन आपको बना के दे देता है. अब देख लीजिए, now we are going to होप जो ये कॉन्सेप्ट है कि इसको कैसे हम बेसल फंक्शन कहते हैं वो क्लियर हुआ होगा आपको. नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस रिजल्ट. इट्स प्रूफ इज वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत ही मजा आने वाला है इसके प्रूफ में. अब देख लीजिए व्हाट वी हैव टू प्रूव. वी हैव टू प्रूव दैट दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इक्वल टू दिस on the right hand side. So I will take the left hand side. So we have
e to the power x by 2 t minus 1 by t. This is the exponential function. Definitely this exponential function can be written in the form x by 2 into t. It is simply e to the power x t by 2, and then you are having minus x by 2t. But I will separate out the two functions. I can write into e to the power minus x by 2t. So I'm having two exponential functions. So in these two exponential functions, what I will do, I will first expand this e to the power x by 2t, then I will expand this e to the power minus x by 2t. So I will be having this is equal to e to the power x by 2. We know exponential function जो हमारे पास है, what is the expansion of exponential function? So जो हमारे पास exponential function है, so I can write down, we know e to the power x is equal to 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial, which is sometimes known as the Taylor series expansion of this e to the power x. The expansion goes up to infinity. Now if we apply this result, जो हमारे पास e to the power x का result है, इस function के लिए भी लगा दे, इस function के लिए भी लगा दे. So what we have, therefore we have, अब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं e to the power x by 2 t minus 1 by t. This quantity will be simply equal to, now e to the power x by 2 ये किसके बराबर हम लिख सकते हैं, look towards this expansion function, it is 1, so यहाँ पर पहले 1 आएगा, plus then you are having x by 1 factorial, but instead of x what we are having x by 2t या xt by 2. So I can write down here 1 by 1 factorial x by 2t x by 2 या xt by 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस देन यू आर हैविंग x स्क्वायर by 2 फैक्टोरियल, सो इसका स्क्वायर आएगा, मैं लिख सकता हूं 1 by 2 फैक्टोरियल x t by 2 whole square plus then I can write down 1 by 3 factorial x t by 3 xt by 2 whole cube plus you can move onwards plus dash 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 into, now we have to take the product of this quantity. किसके साथ इसका प्रोडक्ट हमें लेना है, we have to take e to the power minus x by 2. What is this quantity now? It is 1. Then you are having, look, it's 1 plus x. Instead of x, what you are having? Minus x by 2. So ये आएगा minus 1 by 1 factorial x by 2t. Then you are having plus 1 by 2 factorial x by 2t square minus 1 by 3 factorial x by 2t whole cube plus dash dash dash. And no doubt you can insert the r term as well, that will 1 by r factorial minus 1 raised to power r minus 1 by r factorial x by 2t raised to, आप ऐसे भी बता सकते हैं इसको. ना यहाँ पर अब इसमें एक मसला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर ये जहन में रखना है आपको. अगर आपने ये पॉइंट समझ लिया आपको आसानी होगी फिर पूरे रिजल्ट को समझने में. अब देख लीजिए, we have to take the product of these two quantities. अब जब हम इसका प्रोडक्ट ले लें, इसके प्रोडक्ट में क्या होगा, अगर हम बाय द वे फिलहाल 1 का प्रोडक्ट 1 से ले 1 आएगा, इस टर्म का प्रोडक्ट इस टर्म के साथ ले ले, मींस ऊपर जिसके पास t है नीचे भी जिसके पास t है, इन दो का प्रोडक्ट ले ले, यानी इस टर्म का प्रोडक्ट ले ले और इस टर्म का प्रोडक्ट ले, ये दो जो टर्म्स आपके पास है, t और t कैंसिल होगा, सो ये जो प्रोडक्ट आएगा ये आएगा 1 by 1 फैक्टोरियल होल स्क्वायर x by 2 होल स्क्वायर, तो इसके पास t नहीं आएगा. सो अगर आप ये और ये देखेंगे, ये दो टर्म्स देखेंगे, यहाँ पर भी टी स्क्वायर है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर आएगा, प्रोडक्ट में जब टी स्क्वायर कैंसिल होगा, सो हमारे पास क्या आएगा, हमें आएगा 1 by 2 फैक्टोरियल होल स्क्वायर x by 2 होल स्क्वायर. तो ये भी एक टर्म आएगी जिसमें t नहीं आएगा. अगर आप इस क्यूबिक टर्म को आपस में मल्टीप्लाई देंगे उसमें भी t नहीं आएगा.
मीन्स हमारे पास कुछ टर्म्स ऐसी बनेगी जिनके साथ टी बिल्कुल नहीं आएगा। सो वो किसका कोफिशिएंट बनेगा, वो बनेगा टी रेज़्ड पावर 0 का कोफिशिएंट। अब देख लीजिए, जब हम इस 1 का प्रोडक्ट इसके साथ दें, इस टर्म के साथ दें, ये आएगा 1 into 1 by 1 factorial x by 2 t। सो ये क्या बनेगा, इस टर्म के साथ 1 by t आएगा। जब हम इसका प्रोडक्ट इसके साथ दें, यहाँ पर है x by 2 t, यहाँ पर डिनोमिनेटर में है t स्क्वायर, एक कैंसिल होगा, सो इसमें भी आएगा 1 by t। जब हम इसका प्रोडक्ट इसके साथ दें, सो यहाँ पर ऊपर है टी स्क्वायर, यहाँ पर नीचे है टी क्यूब, सो इसमें भी दो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर भी रहेगा 1 by t। मीन्स अगर हम इसका प्रोडक्ट आगे वाली टर्म के साथ दे, फिर इसका प्रोडक्ट स्क्वायर वाली टर्म का प्रोडक्ट क्यूबिक वाली टर्म के साथ दे, फिर इस क्यूबिक वाली टर्म का फोर्थ वाली डिग्री टर्म के साथ दे, वो जो टर्म्स बनेंगे उनके प्रोडक्ट में जब हम देखेंगे, उनका प्रोडक्ट लेकर, वो एक ऐसी टर्म बनेगी जिसका फिर लास्ट में हम कॉमन निकाल सकते हैं 1 by t, दैट इज t to the power -1, वो कोफिशिएंट बनेगा t raised power -1 का। वैसे ही अगर आप मान लीजिए इसका प्रोडक्ट फिर या इसका प्रोडक्ट आप इसके साथ दे, आपको आएगा 1 by t स्क्वायर, फिर इसका प्रोडक्ट इसके साथ दे, इसका आएगा 1 by t स्क्वायर यहाँ पर भी, फिर इसका प्रोडक्ट t जिसमें स्क्वायर है फोर्थ वाली डिग्री के साथ दे, सो वहां पर आएगा 1 by t स्क्वायर। सो ऐसे हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट पावर्स ऑफ t बनेंगे। सो 1 by t आएगा, 1 by t स्क्वायर आएगा, 1 by t क्यूब आएगा, 1 by t रेज़ पावर 4 आएगा, t रेज़ पावर 5 आएगा, इट कैन गो अप टू इंफिनिटी, राइट। अब खाली ये नहीं, अगर आप ऐसे भी देख लें, जब हम इसका प्रोडक्ट इस सेकंड वाली टर्म का प्रोडक्ट फर्स्ट वाली टर्म के साथ दे, वहां पर टी आएगा। इस सेकंड वाली टर्म का इस फर्स्ट वाली टर्म के साथ दे, यहाँ पर एक टी स्क्वायर, इसके डिनोमिनेटर में टी, यहाँ पर कैंसिल होगा, वहां पर न्यूमरेटर में टी आ जाएगा। वैसे इस वाली टर्म का प्रोडक्ट इस प्रीसीडिंग टर्म के साथ दे, यहाँ पर एक क्यूब, यहाँ पर एक स्क्वायर, टी कैंसिल होगा, वहां पर टी बच जाएगा। सो इस केस में हमारे पास वो टर्म्स आएगी जिनके कॉमन में आप टी निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर आप मान लीजिए इसका प्रोडक्ट इसके साथ दे, वहां पर टी स्क्वायर आएगा, फिर इस क्यूबिक का प्रोडक्ट इस सिंगल वाले के साथ दे, वहां पर भी टी स्क्वायर आएगा। इन अदर वर्ड्स, इन शॉर्ट, when we take the product, we will have certain terms, we will have certain terms just like plus dash dash dash, we will have certain terms जिनमें हम 1 by t स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। देन प्लस we will have certain terms जिसमें हम 1 by t कॉमन निकाल सकते हैं, प्लस we will have certain terms जिसमें हम t raised power 0 कॉमन, मींस उसके साथ t होगा ही नहीं, मींस ये कांस्टेंट टर्म एक बन जाएगा, प्लस we will have certain term जिसके आपके पास t आएगा, we will have certain terms जब t स्क्वायर आएगा प्लस जाए जाए, ये इस टाइप का पॉलिनोमियल आपके पास बनेगा, राइट। अब इसी को हम देखेंगे किस टाइप का बनेगा, देन वी कैन सिंपलीफाई इट एंड वी विल ऑब्जर्व दैट दिस राइट हैंड साइड जो हमारे पास समेशन है, दिस समेशन इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू दिस पार्ट। ओके, अब देख लीजिए, नाउ वी आर टेकिंग द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए प्लीज आप पूरा ध्यान यहां पर रख लीजिएगा। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए पहले मैं वो टर्म्स देखूं जिनमें टी नहीं आएगा। वो कब नहीं आता है, जब आप कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई, इस वन को इस वन के साथ मल्टीप्लाई देते हैं, 1 into 1, दिस इज 1, फिर प्लस इंटू माइनस, दैट्स माइनस 1 by 1 फैक्टोरियल, 1 by 1 फैक्टोरियल, यहां पर आएगा 1 by 1 फैक्टोरियल स्क्वायर इंटू एक्स टी बाई टू, एक्स बाई टू टी, टी टी कैंसिल होगा, सो यहां पर आएगा एक्स बाई टू होल स्क्वायर। ओके, सो जो आपके पास ये है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहां पर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, थोड़ा ठीक रहेगा ऐसे, 1 by 1 फैक्टोरियल स्क्वायर इंटू एक्स बाई टू स्क्वायर। गुड, देन अगर आप इसको इसके साथ प्रोडक्ट दे, मैं वो टर्म्स देख रहा हूं जिनमें टी टी कैंसिल होगा, वो डेफिनेटली इन कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई देके आएगा। 1 by 2 into 1 by 2 फैक्टोरियल into 1 by 2 फैक्टोरियल, वो आएगा 1 by 2 फैक्टोरियल स्क्वायर। देन यू आर हैविंग एक्स टी बाई टू, यहाँ पर एक्स बाई टू टी, टी स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आपके पास आएगा एक्स बाई टू स्क्वायर इंटू एक्स बाई टू स्क्वायर, सो ये बनेगा एक्स बाई टू टू द पावर 4।
then you are having plus into minus, it's minus, then 1 by 3 factorial into 1 by 3 factorial, then you are having 1 by 3 factorial square xt by 2 यहाँ पर t क्यूब न्यूमरेटर में है, यहाँ पर t क्यूब डिनोमिनेटर में, आपस में कैंसिल होगा, फिर आएगा x by t क्यूब इंटू x by t क्यूब, आएगा x by t to the power 6, x by 2 to the power 6 प्लस डैश डैश डैश। अगर कोई इसकी केथ टर्म भी जो मुझे चाहिए नहीं यहाँ पर, अगर आप देखना चाहते हैं वो किस तरह की केथ टर्म इसमें होगी, प्लस देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, जस्ट लाइक यहाँ पर -1 है, इसको मैं लिख सकता था यहाँ पर -1 क्यूब, यहाँ पर है प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 स्क्वायर, मीन जो यहाँ पर पावर है इसका आधा है, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ -1 to the power, in terms if I write down it in terms of k, I can write down -1 to the power k divided by, अब देखिए यहाँ पर है, जब यहाँ पर ऊपर है, मान लीजिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर डेफिनेटली आएगा x by 2 raised power 2k। अब देख लीजिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 का अदर फैक्टोरियल 3, यहाँ पर है 4, यहाँ पर इसका जो हाफ है 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर 2 है, इसका हाफ जो है 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर 2k आएगा, नीचे आएगा इसका हाफ, दैट इज k फैक्टोरियल होल स्क्वायर, and this is how we can write down the kth term. And if we want to write down the nth term of this result, where we can have this t raised power 0 common, उस केस में क्या कर सकते हैं हम, सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस डैश 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 प्लस, आप देख लीजिए यहाँ पर -1 to the power k डिवाइड बाई k फैक्टोरियल, इसकी जगह पर आएगा आप -1 to the power n divided by n factorial into x by 2 whole raised power twice n plus dash dash dash, this will run up to infinity. So this is actually the coefficient of t to the power 0, जहां पर हमारे पास t कोएफिशिएंट नहीं आएगा। अब इसके बाद हम वो कोएफिशिएंट देखेंगे, वो टर्म्स देखेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके t हम कॉमन निकाल सकते हैं। जस्ट लाइक देख लीजिए, जब हम इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई देंगे इस वाले 1 के साथ, वहां पर t कॉमन निकलेगा, इस t स्क्वायर वाले टर्म को मल्टीप्लाई देंगे इस t रेज पावर 1 के साथ, वहां पर जो डिनोमिनेटर का t है, क्योंकि यहाँ पर t स्क्वायर है, एक कैंसिल हो जाएगा, वहां पर भी t कॉमन निकलेगा। वैसे इस क्यूबिक वाले टर्म के स्क्वायर वाले टर्म के साथ इसकी जो फोर्थ वाली डिग्री टर्म होगी और उसके इसके साथ वहां पर भी t कॉमन निकलेगा। सो इन सब में हमारे पास t कॉमन निकलेगा। सो वो टर्म्स हम फिलहाल कंपेयर करेंगे। प्लस वी कैन राइट डाउन प्लस, अब देख सबसे पहले t कॉमन कब निकलेगा, जब इस वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा, सो यहाँ पर आएगा 1 by 1 फैक्टोरियल x by 2t, so I can write down 1 by 1 factorial x by 2, then I have to multiply this term with this term plus minus, that's minus, so then it's you are having 1 by 1 factorial, here it's 1 by 2 factorial, so I can write 1 by 1 factorial into 2 factorial, then I am having here x2t, यहाँ पर है x2t, ऊपर जो आपके पास है this actually x by 2t whole square, so square और a cancel होगा, so यहाँ पर आएगा x by 2 whole square, so I can write down here x by 2 x by 2 t square है, यहाँ पर है x by 2 raised power 1, t और एक t cancel होगा, खाली t रहेगा, so यहाँ पर है x by 2 square, यहाँ पर है x by 2 raised power 1, so ये आएगा x by 2 cube, लेकिन क्यूब को मैं डायरेक्ट 3 नहीं लिखने वाला हूं, यहाँ पर मैं क्यूब को लिखूंगा 1 plus 2, फिर आएगा प्लस माइनस प्लस, अब ये जो आपके पास ये वाली टर्म है, आप देख लीजिए ये क्यूबिक टर्म जो आपके पास है, इसको इस सेकंड वाली डिग्री टर्म के साथ मल्टीप्लाई देंगे, सो यहाँ पर आएगा 1 by 2 फैक्टोरियल 1 by 3 फैक्टोरियल, सो आई विल हैव 1 by 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, देन आई विल हैव, देख लीजिए यहाँ पर इसका पावर है 3, इसका पावर है 2, सो 3 और 2 आपके पास 5 बन जाएगा, सो आएगा x by 2 रेज पावर 5 और t आएगा 7, वो हम लास्ट में लिखेंगे, सो इट्स x by 2 टू द पावर 5, 5 को लेकर मैं लिखूंगा 1 plus 4 जो आपके पास है 2 into 2 में लिखने जा रहा हूं, बिकॉज आई विल पुट इट इनटू द फॉर्म 1 plus twice n या 1 plus twice k, उस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं,
प्लस इसके बाद माइनस आएगा, इसके बाद आप देख सकते हैं रेकरेंस या मल्टीप्लाई देखकर खुद देख लीजिए, या मल्टीप्लाई यहाँ पर रेकरेंस लीजिए, यहाँ पर 1 by 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर आएगा 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर आएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल x by 2। आप देख लीजिए यहाँ पर, इससे पहले क्या था पावर, यहाँ पर मान लीजिए आपके पास 1 है पावर, यहाँ पर 3 है, फिर है 5, इसके बाद आएगा 7, लेकिन 7 को कैसे लिखेंगे हम, 1 plus 2 into 3। सो ये आपके पास ये वाली टर्म बनेगी, राइट। नो डाउट इस केस में आप kth टर्म भी अगर लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, और nth टर्म लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, मींस प्लस डैश, जैसे अगर मैं kth टर्म लिखने जा रहा हूं, सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -1 raised power k, बिकॉज आपके पास ये अल्टरनेटिव साइन क्या आ रहे हैं, प्लस माइनस, सो आई कैन राइट डाउन -1 to the power k whole divided by k factorial, k plus 1 factorial. Then what I will have x by 2 whole raised power 1 plus 2k प्लस डैश डैश डैश, आप n टर्म भी अगर लिखना चाहते हैं, दैट -1 raised power n divided by n factorial into n plus 1th factorial, then you are having x by 2 raised power 1 plus 2n plus डैश डैश डैश। लेकिन ये जो पूरा कोफिशिएंट आपके पास है, ये किसका कोफिशिएंट, इट्स t raised power 1। Similarly you can find out plus t square t cube dash 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 t raised power n है, डिफरेंट टर्म्स आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो विल बी इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द nth टर्म। nth टर्म किसके बराबर होगी, अब देख लीजिए, अगर आप ऊपर दो टर्म्स का प्रोडक्ट देख लिए, यहाँ पर जो टर्म्स आपके पास है इनका अगर हम प्रोडक्ट देख लिए, यहाँ पर nth टर्म हमारे पास कहां से आएगी, अब यहाँ पर आपके पास nth टर्म कैसे, यानी t raised power n, वो कहां से हमें आएगा। अब देखिए जो पहली ये सीरीज है, इसमें हमारे पास यहाँ पर एक क्यूब, एक टर्म ऐसी होगी, इसके बाद nth प्लेस पर इसकी एक टर्म ऐसी होगी, देख लीजिए मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर एक टर्म बिकॉज इट रन्स अप टू इन्फिनिटी, यहाँ पर एक टर्म ऐसी होगी प्लस 1 by n फैक्टोरियल x t by 2 होल रेज्ड पावर n। अब देखिए यहाँ पर t रेज्ड पावर n है, जब ऐसी टर्म को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई लगेगा, वहां पर क्या आएगा, वहां पर आएगा t रेज्ड पावर n कोफिशिएंट, प्लस इसके बाद वाली जो टर्म होगी वो कौन सी टर्म होगी, 1 by n plus 1 फैक्टोरियल xt by 2 रेज पर n plus 1, सो उसका xt by 2 का पावर होगा n plus 1, लेकिन जब उसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर है t का पावर है वहां पर 1 डिनोमिनेटर में, वहां पर आएगा t रेज पर n plus 1, एक कैंसिल होगा, वहां पर भी t आएगा, मींस इनके बाद 1 by n फैक्टोरियल के बाद जो टर्म्स आपके पास होगी, इन टर्म्स के बाद इस टर्म का मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके बाद वाली टर्म उसके इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, उसके बाद वाली टर्म उसका मल्टीप्लाई इसके साथ, उसके बाद वाली टर्म उसका मल्टीप्लाई इसके साथ, वो जो टर्म्स आपके पास बनेंगी उनमें खाली आपके पास टी रेज पर n कॉमन आएगा, राइट, टी रेज पर n हम कॉमन निकाल सकते हैं। सो वो टर्म जो वो आपके पास टर्म है वो कैसे बनेगी, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। देख लीजिए, जब हमारा इस टर्म का मल्टीप्लाई, ये जो आपके पास है ये 1 by n फैक्टोरियल x t by रेज पर n का मल्टीप्लाई 1 के साथ लगेगा, वो क्या आएगा, दैट विल बी, यहां पर मैं लिख देता हूं, that will be simply 1 by n factorial x by 2 to the power n। अब देखिए दूसरा क्या है, अब इसके बाद वाली जो टर्म है उसका मल्टीप्लाई इसके साथ है, क्योंकि वो प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस आएगा, सो वहां पर आपके पास है 1 by n plus 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर है 1 by 1 फैक्टोरियल, सो यहाँ पर और है x by 2 रेज्ड पावर 1, वहां पर है x by 2 रेज्ड पावर n plus 1, तो ओवरऑल बनेगा 1 by 2 रेज्ड पावर n plus 2। सो आपके पास यहाँ पर आएगा प्लस सॉरी माइनस 1 by 1 फैक्टोरियल, एक तो ये है, और है n plus 1 फैक्टोरियल, n plus 1 फैक्टोरियल है, और है x by 2 जो इसका नेक्स्ट पावर था वहां पर, दैट वाज n plus 1, और n के साथ मल्टीप्लाई, दैट्स n plus 2, लेकिन इस 2 को लिखूंगा 2 into 1, राइट। सो इसके बाद आप फिर से लिख सकते हैं प्लस उसके बाद वाली टर्म हमारे पास है 1 by 1 फैक्टोरियल, फिर आएगा हमारा 1 by 2 फैक्टोरियल, n plus 1 की जगह पर आएगा n plus 2 फैक्टोरियल, फिर है यहाँ पर x by 2, यहाँ पर अब आपके पास पहले था n plus 1, अब इसको n plus 2 वाली टर्म को n plus 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो आएगा n plus 2 दैट्स n plus 4, सो उसको हम लिख सकते हैं n plus 2 into 2 प्लस डैश, अगर आप तीसरी टर्म भी देखना चाहते हैं वो हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहाँ पर 2 फैक्टोरियल n plus 2,
यहां पर आएगा 3 फैक्टोरियल n प्लस 3 फैक्टोरियल x बाई 2। अब देखिए यहां पर जब 2 था इसको हमने हमने लिखा n प्लस 2 इंटू 2, यहां पर आएगा n प्लस 2 इंटू 3 प्लस डैश डैश डैश। अगर आप इसकी केथ टर्म भी देखना चाहते हैं या इन जनरल एन टर्म भी देखना चाहते हैं वो भी लिखते हैं केथ टर्म, बाय द वे हम इसमें लिख सकते हैं -1 टू द पावर k होल डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल इंटू k प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू x बाई 2 रेज्ड फॉर n प्लस 2 k प्लस डैश डैश। लेकिन ये जो पूरा है इसका जो आपके पास कॉमन निकलेगा दैट्स t रेज़ फॉर n प्लस डैश डैश डैश, इसके आगे भी जाएगा। तो हमने देखा ये पॉलिनोमियल आता है हमारे पास, टी रेज़ पावर 0 है, टी रेज़ पावर 1 है, टी रेज़ पावर 2 है, टी रेज़ पावर 3 है, ऐसे ही टी रेज़ पावर n भी है। अब यहाँ पर और एक चीज हम देखेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव पावर्स ऑफ टी आएंगे। नेगेटिव पावर्स ऑफ टी कब आएंगे? जब आप देख लीजिए नेगेटिव पावर कब आएगा। इसका जो आपके पास है, ये जो टर्म आपके पास है, थोड़ा मैं डिफरेंट कलर में दिखा देता हूं ताकि आपको ये क्लियर आ जाए। यहाँ पर देखिए ये जो टर्म आपके पास है, इस टर्म का मल्टीप्लाई जब इस 1 के साथ आ जाएगा, राइट, आपको डिनोमिनेटर में टी आएगा, मींस टी रेज़ पर -1। जब इस टर्म का मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ लग जाएगा, देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर, यहाँ पर न्यूमरेटर में टी, एक कैंसिल होगा सो डिनोमिनेटर में आएगा टी। सो इस टर्म का मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ, सो डिनोमिनेटर में आएगा टी स्क्वायर। इन अदर वर्ड्स अगर आप इन चीजों को एनालाइज कर ले, देख लीजिए इसको जब हम मल्टीप्लाई इस 1 के साथ ले दे, हमें क्या आएगा 1/1 फैक्टोरियल x बाई 2 इंटू 1 बाई टी। लेकिन वो तो ये है 1/1 फैक्टोरियल कहां गया ये वाला 1/1 फैक्टोरियल x बाई 2 रेज़ पर 1। अब देख लीजिए 1 बाई टी और कहां पर आएगा जब इसका मल्टीप्लाई हम इस वाली टर्म के साथ मींस पहले प्रोडक्ट की सेकंड टर्म और इसकी थर्ड टर्म। अब देख लीजिए यहाँ पर 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल वो तो है, यहाँ पर 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल, फिर आएगा यहाँ पर x बाई 2, यहाँ पर x बाई 2 स्क्वायर, सो ये बनेगा x बाई 2 क्यूब, सो वही है x बाई 2 रेज़ पर 1 प्लस 2, और यहाँ पर t नीचे है t स्क्वायर, सो यहाँ पर आएगा 1 बाई टी। सो जब हम t नेगेटिव वाले पावर कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, वो यही कोएफिशिएंट्स आएंगे, बिल्कुल सेम, देयर इज नो डिफरेंस। उसमें भी बाहर टी रेज़ पर 1 कॉमन आएगा। जब 1 बाई बाहर आएगा कॉमन 1 बाई टी, जब हम वो टर्म देख ले जिनमें 1 बाई टी स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक है ना, वो वही आएगा। इन जनरल अगर हम वो टर्म्स देख ले जिसमें 1 बाई टी रेज़ पर n कॉमन निकलेगा बाहर में, वो तो इनसाइड यही आएगा। सो इसको मैं फिर से लिख सकता हूं यहाँ पर प्लस डैश डैश डैश, और हमारे पास आएगा ये भी प्लस, ये अप टू इंफिनिटी जाएगा, प्लस मान लीजिए अगर मैं इसका नाम a1 रख लूं यहाँ पर शॉर्ट में, ये जो आपके पास टर्म आ गई, ये जो यहां से यहां तक टर्म है, इसका नाम फॉर सम टाइम में ए रख दूं, राइट। ए बाहर क्या निकलेगा 1 बाई टी 1, सो ये यही आएगा प्लस ए, यहां पर आएगा 1 बाई टी 1 मींस टी इनवर्स प्लस। अब देख लीजिए अगर मैं फिर डैश 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 टी स्क्वायर भी यही आएगा प्लस, मान लीजिए इस टर्म का नाम अगर मैं बी रख दूं, ये मुझे यहां पर आएगा बी, बाहर आएगा 1 बाई टी रेज़ पर n प्लस डैश डैश डैश। इन जनरल अब मैं इन कोएफिशिएंट्स को ऐसे तो लिख सकता हूं। अब देख लीजिए यहां पर और एक चीज ध्यान में रख लीजिएगा, ये जो आपके पास ये टर्म है, जो ए जिसको मैंने नाम दिया, दिस इज नथिंग, दिस इज सिंपली j1x। अगर आप फॉर्मूला को एक्सपेंड करेंगे, अगर आप देखेंगे ये जिसमें आपके पास t रेज़्ड पावर 0 है, दिस इज नथिंग बट दिस इज सिंपली j0x। अगर आप देख ले ये जो आपके पास रेड कलर का यहां पर लिख रहा है जिसमें टी रेज़ पावर n कॉमन है, इसका जो कोएफिशिएंट है दिस इज नथिंग, दिस इज jnx। सिमिलरली अगर आप 1 बाई टी देखेंगे यहां पर, ये जो पावर ये किसका कोएफिशिएंट था हमारे पास टी रेज़ पावर माइनस, आप यहां पर लिख सकते हैं दिस इज j ऑफ -1x, राइट। तो इसमें कोई चेंज नहीं है। सो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? सो आई कैन राइट डाउन दिस एज, I can write down this as now. I can write down. It implies e to the power जो हमारे पास x by 2 है t minus 1 by t, अब वो किसके बराबर निकला?
दैट्स इक्वल डैश 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 प्लस एक कोफिशिएंट है उसको हमने जे देखा वो जे माइनस वन एक्स निकलता है लेकिन ये किसका कोफिशिएंट है टी रेज पावर माइनस वन का प्लस फिर हमने देखा जे माइनस टू एक्स लेकिन ये किसका कोफिशिएंट है इट्स टी रेज पावर सॉरी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पहले थोड़ा सा मैं यहाँ से माइनस टू को स्टार्ट कर देता हूँ माइनस टू यहाँ पर माइनस टू फिर जे ऑफ माइनस वन एक्स टी माइनस वन प्लस फिर आएगा जे नॉट एक्स टी रेज पावर प्लस जे वन एक्स टी टू द पावर वन प्लस जे टू एक्स t square plus dash dash dash. So what it implies? It implies that e to the power x by 2 is equal to t minus 1 by t. This is simply equal. If you take this, this can be written in the summation form. Summation of this जो हमें प्रूव करना है n runs from minus infinity to infinity t to the power n jnx. This is the result that we have to prove and it's proved. Now, if you have any confusion, if you have any question regarding this, आप उसके comment section में लिख सकते हैं. Thank you.